back. I am Vandana and we are learning science of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Innovators Science. Today we are going to start with chapter number 12, Natural Disasters. So let's move on to the intended learning outcomes. So here in this chapter we are going to learn about earthquakes, tidal waves and tsunami, volcanoes, floods, droughts. Let's move on to kick off. So natural disaster is a terrible event. ये एक terrible event है that is caused by the forces of nature and bring with it a lot of destruction, damage, pain and suffering. So ये एक बहुत ही terrible event है. ये naturally cause होता है and ये अपने साथ बहुत सारी तबाही लेके आता है. Let us take a close look at some natural disasters. तो चलिए हम कुछ natural disasters के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. So before that let's move on to Funtopia. Here you have to look at the pictures given below and identify the natural disasters. Choose the words from those given below. So here you can see बहुत सारा पानी है. So this is the situation of flood. Next आप देख सकते हैं जो है चीजें बहुत तहस महस हो गई हैं. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं it is earthquake. अगेन यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हो रहा है तो ये है वोल्केनिक इरप्शन. एंड द नेक्स्ट यू कैन सी नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है. सो दिस इज ड्राफ्ट. सो दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ दीज कंडीशंस. दीज आर सम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स. नाउ लेट्स लर्न अबाउट अर्थक्वेक्स. So an earthquake is a sudden shaking or tremor of the earth caused due to movements or vibrations inside the earth. Earthquake क्या है? ये एकदम से धरती हिलने लग जाती है. So क्या होता है? मूवमेंट होने लगता है, जो प्लेट्स हैं उसमें वाइब्रेशन होने लगती है, तो इसे ही हम earthquake कहते हैं. Let us know how earthquakes occur. कैसे ये होते हैं? Let's read about it. So as we know the earth is made up of 3 layers. जैसे कि हमें पता है कि earth 3 layers से बनी हुई है, crust, mantle और core. The outermost layer of earth is called the crust. जो बाहरी सतह है earth की उसे हम crust कहते हैं. And the layer below the crust known as a mantle is made up of hot rocks. अब crust के नीचे जो layer है mantle वो hot rock से बना हुआ है. The core is the deepest or the innermost layer of the earth. कोर जो है वो डीपेस्ट और इनरमोस्ट लेयर है अर्थ की. एंड इट इज मेड अप ऑफ हॉट मोल्टन मटेरियल. ये गर्म मोल्टन मटेरियल से बना हुआ है. द कोर इज नॉट इन अ स्टेबल स्टेट. ये स्टेबल स्टेट में नहीं है. अ लॉट ऑफ मूवमेंट गोज ऑन इनसाइड इट. इसके अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होते रहते हैं. सो ये जो मूवमेंट है इन्हें ही हम अर्थक्वेक कहते हैं. The point deep inside the earth where an earthquake originates is called the focus. वो पॉइंट जहां से ये earthquake स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं. And the point on the earth surface directly above the focus is called the epicenter. और वो पॉइंट जो earthquake का ये जो फोकस पॉइंट है उसके जस्ट ऊपर होता है, उस पॉइंट को हम एपिसेंटर कहते हैं. The maximum effect of the earthquake is felt at the epicenter. जो earthquake आता है उसका जो सबसे ज्यादा impact है वो epicenter पे आता है. And its effect reduces as we move away from the epicenter. जैसे जैसे हम epicenter से दूर जाएंगे इसका जो effect है वो कम होता जाएगा. Now here you can see the effects of earthquake. क्या क्या चीजें हुई हैं earthquake से. आप देख सकते हैं रोड की क्या हालत हो गई है, या buildings को क्या हो गया है, या लोग कैसे बैठे हुए हैं. So it causes destruction of buildings, trees, roads and vehicles. इन सब चीजों को जो है तबाह कर देता है. Now huge loss of life to humans and animals. Humans और animals सब जो है इसमें कई सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, मर जाते हैं. And spread of diseases. और बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं. Now measuring earthquake and their effects. कैसे हम earthquake और उसके effects को measure कर सकते हैं. So the effects of earthquake depends on the force with which they occur. क्या होगा इसका इफेक्ट वो तब पता चलेगा कि कितने फोर्स से ये earthquake आया था. उसके बाद ही पता हम कर सकते हैं कि कितना इसका नुकसान हो. Some earthquakes are so mild that they merely shake things kept on the shelf.
कुछ अर्थक्वेक तो ऐसे होते हैं जो अलमारी पे रखी हुई चीजों को ही हिलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पैदा करते हैं, लाइफ और प्रॉपर्टी सबको काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ता है। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सीस्मोग्राफ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा सीस्मोग्राफ, ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को बताता है। सो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को बताता है। Richter scale is a standard scale that is used to find out the intensity of earthquake. Richter scale क्या है? ये एक स्टैंडर्ड स्केल है जिसकी मदद से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को पता किया जाता है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। 1 से 10 तक इसे रैंकिंग दी जाती है। Earthquakes measuring 1 to 2 on the scale will hardly be felt। अगर अर्थक्वेक जो है 1 से 2 के बीच में है तो वो फील करना भी मुश्किल है। अगर अर्थक्वेक जो है 3 से 4 के बीच में है या 5 के बीच में है तो क्या होगा, ये थोड़ा बहुत हमें नुकसान पहुंचा सकता है प्रॉपर्टी को। फिर अगर जो है अर्थक्वेक है वो 6 से ज्यादा है, 6 है उससे ज्यादा है तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, लोग मर भी सकते हैं, बिल्डिंग्स गिर भी सकती है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के समय हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए। सो हियर आर सम स्टेप्स विच कैन बी टेकन टू रिमेन सेफ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। पहला क्या है, डू नॉट रन अराउंड इन पैनिक। पैनिक की सिचुएशन में ना दौड़ें इधर उधर। इफ यू आर इनसाइड द हाउस टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और अ बेड। अगर आप घर के अंदर हैं तो किसी बेड या फिर किसी टेबल के नीचे छुप जाए। लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप। So Zhang Heng of China's Heng dynasty was the first person to make an instrument to detect earthquakes. तो earthquake को डिटेक्ट करने के लिए पहला इंस्ट्रूमेंट इन्होंने ही बनाया था और ये चाइना के थे। सो ये थे 2 पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा डू नॉट स्टैंड अंडर और नियर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फॉल एंड हिट यू। ऐसी चीजों के पास ना खड़े हों, ऐसी चीजों के नीचे ना खड़े हों जो आपके ऊपर गिर सके, आपको चोट लग जाए। Do not use an elevator if you are on the upper floor of a building. Always use a staircase. So अगर earthquake की सिचुएशन है तो उस समय हमें एलिवेटर्स को यूज ना करना चाहिए, हमें स्टेयरकेस को यूज करना चाहिए। If you are outdoors, अगर आप बाहर हैं, stand in an open area. आप एक ओपन एरिया में खड़े हो जाएं जहाँ बिल्डिंग्स ना हो, ट्रीज ना हो, away from buildings or trees. Now next comes volcanoes. So volcano is an opening or a rupture in a heavenly body's surface or crust. वोल्केनो क्या है, ये एक तरीके की ओपनिंग है या फिर रप्चर है किसी भी हेवनली बॉडी के सरफेस पे, which allows hot molten rocks, ash and gases to escape from below the surface. जो कि क्या करते हैं, गरम गरम लावे को, गैसेस को बाहर निकाल देती हैं उस ओपनिंग से। Deep inside the earth there are hot molten rocks called magma. अर्थ के अंदर बहुत ही गरम गरम मोल्टन रॉक है जिसे मैग्मा कहते हैं। एंड दिस मैग्मा कम्स अप एंड कलेक्ट्स इन अ चैम्बर। और ये मैग्मा जो है आता है, कलेक्ट हो जाता है एक चैम्बर में। When the pressure inside the chamber builds up, जैसे ही जो है प्रेशर इस चैम्बर के अंदर बिल्ड होता है, the magma bursts out from a vent or opening और a crack in the crust. So ये जो मैग्मा है ये burst out हो जाता है किसी भी वेंट से, किसी भी ओपनिंग से या फिर क्रैक से, जो भी उस क्रस्ट में होता है। A volcano is formed when gas, pieces of rocks, ash and lava erupt from vent. वोल्केनो जो है तब जो है फॉर्म होता है जब गैसेस, रॉक्स के पीसेस, एश, लावा ये सारे जो है बाहर की तरफ निकलने लगते हैं वेंट से। When magma erupts through the earth surface, जैसे ही मैग्मा जो अर्थ के सरफेस से बाहर निकलता है उसे हम लावा कहते हैं। And on cooling it forms a volcanic rock, और ठंडे होने पे वोल्केनिक रॉक बनाता है। The hollow top of the volcano that is shaped like a bowl is called a crater. So ये जो hollow top होता है वोल्केनो का, जो है गड्ढे जैसा होता है, बाउल जैसा होता है, उसे हम क्रेटर कहते हैं। Now there are 3 types of volcanoes, 3 तरीके के volcanoes होते हैं। पहला है active, फिर है dormant और तीसरा है extinct. Let's learn about active volcanoes. So these are considered to be highly
डेंजरस, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस माने जाते हैं एंड ये जो है किसी भी टाइम इरप्ट कर सकते हैं एंड मे हैव इरप्टेड इन द रिसेंट ईयर्स, या फिर अभी कुछ दिन पहले ही या कुछ साल पहले ही इरप्ट किए गए होंगे। Some of the most active volcanoes are Mount St. Helens in the United States, Mount Meons in the Philippines and Mount Lassen in the United States. ये कुछ जो है एक्टिव volcanoes के नेम दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं dormant volcanoes. So volcanoes that have not erupted for a long period of time but may erupt in the future are called dormant volcanoes. ऐसे volcanoes जो काफ़ी समय पहले जो erupt हुए थे और हो सकता है कि फ्यूचर में फिर से इरप्ट हो जाएं, ऐसे वोल्केनोस को हम डोरमेंट वोल्केनोस कहते हैं। और कुछ यहाँ पे डोरमेंट वोल्केनोस के नाम दिए गए हैं, जैसे माउना के इन हवाई, माउंट एडजीजा इन कनाडा एंड नारकंडम इन अंडमान आइलैंड्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। So volcanoes that are not expected to erupt in the future, ऐसे volcanoes जो आगे फ्यूचर में erupt नहीं होंगे and these are called extinct volcanoes. इन्हें हम extinct volcanoes कहते हैं and कुछ जो है volcanoes के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि माउंट आशिटाका जो कि जापान में है, फिर है शिप रॉक यूनाइटेड स्टेट्स में एंड ये है ज़ुइडवॉल इन द नीदरलैंड्स। So ये थे अलग अलग तरीके के volcanoes. Let's move on to just a heads up. So a region in the Pacific Ocean which consists of 452 volcanoes is called the Ring of Fire. So ये जो जगह है पैसिफिक ओशन में है, जहाँ पे कहा जाता है कि 452 volcanoes हैं, उस जगह को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। Now let's learn about the effects of volcanic eruption. अब volcanic eruption से क्या क्या effects होते हैं? So destruction of farmlands and roads, damage to property and loss of life. So क्या होता है, farmlands और roads खराब हो जाते हैं, property को damage होता है और life को भी damage होता है। Volcanic dust blocks sunlight for a long period. जो volcanic dust है वो क्या करती है, सूरज की रोशनी को काफ़ी लंबे समय तक जो ढक के रख देती है, which leads to change in the weather pattern, जिसकी वजह से weather pattern change हो जाता है। And next is spread of diseases, और बीमारियां भी फैलती हैं। Next, there are some advantages of volcanic eruption. So after volcanic eruption, the soil becomes very fertile. अब इस eruption के बाद जो है soil काफ़ी ज़्यादा fertile बन जाती है। Good for farming, यहाँ पे farming बहुत अच्छे से कर सकते हैं। And some of the volcanic locations can be used to generate geothermal energy. और कुछ वॉल्केनिक लोकेशंस को हम जियोथर्मल एनर्जी को जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द टाइडल वेव्स एंड सुनामी। सो टाइड्स आर द अकरेंसेस ऑफ राइज एंड फॉल इन द सी लेवल। सो टाइड जो है क्या होता है, ये जब सी लेवल में राइज या फिर फॉल होता है उसे ही हम टाइड्स कहते हैं। एंड समटाइम्स द वेव्स ऑन द सी आर हाई एंड समटाइम्स दे आर लो। सो कई बार क्या होता है, सी में जो टाइड है वो हाई होते हैं, कई बार वो लो होते हैं एंड दिस राइज एंड फॉल ऑफ द वेव्स इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। और ये जो राइज एंड फॉल है ये सन एंड द मून इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, एक्टिंग ऑन द ओशियंस एंड सीज ऑफ द अर्थ। सो जो भी ओशियंस और सीज हैं उन पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा वर्क करता है, जिसकी वजह से टाइड्स चेंज होते हैं। टाइड्स रीच द मैक्सिमम हाइट व्हेन द सन, मून एंड द अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। जब ये तीनों ही चीजें सन, मून और अर्थ तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो ये जो टाइड्स हैं काफी ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं। सुनामी इज एन enormous wall of water that comes as a series of waves onto the seashore. सुनामी क्या है, ये एक बहुत बड़ी वॉल है वाटर की जो कि वेव्स के फॉर्म में सी शोर पे आ जाती है। एंड दीज वेव्स हैव अ लॉट ऑफ फोर्स। ये जो वेव्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको फोर्स मिलेगा एंड कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, और ये लंबी दूरी को कवर कर पाते हैं विदाउट लूजिंग मच पावर एंड एनर्जी, बिना ज़्यादा पावर और एनर्जी को लूज किए। द वेव्स कैन बी एज हाई एज 15 मीटर्स। ये जो वेव्स हैं ये 15 मीटर्स ऊंची हो सकती हैं। ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर, और ये 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। अ सुनामी कैन बी कॉज ईदर बाय एन अर्थक्वेक।
अब ये सुनामी है या तो अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हो सकता है, या फिर लैंडस्लाइड की वजह से भी हो सकता है। सुनामी वेव्स आर सो पावरफुल, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, डिस्ट्रक्टिव होती हैं कि क्या करती हैं, दे कैन इफेक्ट द एंटायर ओशन बेसिन। सो जितना भी ओशन बेसिन है उन सबको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं ये। On December 26, 2004, a tsunami occurred in India which caused huge loss to life and property in the coastal regions of Tamil Nadu and Kerala. So 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी इंडिया में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी, काफ़ी लोगों को लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान उठाना पड़ा था। जो तमिलनाडु और केरला के जो कोस्टल रीजन्स थे वहाँ पे सुनामी आई थी। एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर द वर्स्ट हिट एरियाज, और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वहाँ सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ा था। नेक्स्ट कम्स फ्लड। So an overflow of a huge amount of water beyond its normal limits over land is called flood. फ्लड क्या कहलाता है, ये जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ वाटर जब ओवरफ्लो करने लगता है किसी भी लैंड पे, उसे हम फ्लड कहते हैं। एंड वी नो दैट मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हमें पता है कि अर्थ का जो सरफेस है उसमें 70% से भी ज़्यादा एरिया जो है पानी से कवर्ड है। When the water bodies like oceans, rivers, lakes and ponds have excess water, they overflow leading to floods. So जब ये water bodies जैसे कि oceans, rivers, lakes और ponds ये जो है काफ़ी ज़्यादा excess में बहने लगते हैं तो क्या होता है, इसकी वजह से flood आने लगता है। Now floods occur due to natural factors like, अब कौन कौन से natural factors हैं जिसकी वजह से flood होता है। पहला है हैवी रेनफॉल, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो फ्लड आ जाता है। लो प्रेशर रीजन फॉर्म्ड इन द ओशन एंड सीज, अगर ओशन और सी में आपको एक लो प्रेशर रीजन मिल जाए तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड आता है। एंड एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ स्नो इन द माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स, अगर माउंटेन्स और ग्लेशियर्स में भी जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बर्फ जब पिघल गई तो भी फ्लड आ जाता है। नाउ फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ देयर आर, फ्लड्स को कैसे रोका जा सकता है, इफ there are proper streams or channels for the excess water to flow through, अगर सही से streams बने हैं, channels बने हैं जिसकी वजह से excess water जो है बह पाए तो flood जो है कम किया जा सकता है। enough trees to slow down the force with which water flows, काफ़ी अमाउंट में ट्रीज को जो है ग्रो किया जाए जिससे जो है वाटर फ्लो को जो है रोका जा सकता है। इनफ मड टू अब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मड होना चाहिए जो कि एक्सेस पानी को अब्जॉर्ब कर पाए। प्रॉपर एम्बैंकमेंट्स दैट कंट्रोल द लेवल ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द रिवर्स, सही तरीके से एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए रिवर के किनारे ताकि जो पानी है वो जो है उसका जो फ्लो है उसे कंट्रोल किया जा सके। नाउ देयर आर सम इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, फ्लड से कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं जैसे लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ का लॉस हो सकता है, डैमेज टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है, स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं वो भी फैल जाती हैं। नाउ इन जून 2013 द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड नियर बाई प्लेसेज रिसीव्ड हैवी रेनफॉल। सो जून 2013 में उत्तराखंड और उसके आसपास की जगहों में काफ़ी भारी बारिश हुई एंड लीडिंग टू डिवास्टेटिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लड का सामना करना पड़ा वहाँ के लोगों को और लैंडस्लाइड्स का सामना करना पड़ा। मोर देन 5700 पीपल लॉस देयर लाइव्स, इतने ज़्यादा लोगों की जान चली गई ड्यूरिंग दिस डिजास्टर, इस डिजास्टर के टाइम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग फ्लड। अब फ्लड के समय कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को हमें फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं। लेट्स सी, फर्स्ट इज डू नॉट पैनिक, पैनिक न करें, ऑलवेज लिसन टू फ्लड वार्निंग्स ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो एंड न्यूज़ चैनल, रेडियो न्यूज़ चैनल पे जो फ्लड वार्निंग है उसके बारे में डिटेल इकट्ठी करते रहें। अबैंडन द एरिया वेयर द फ्लड वाटर इज बाउंड टू एंटर, उस एरिया को खाली कर दें जहाँ पे फ्लड वाटर आने वाला है। नेक्स्ट, रीलोकेट टू हायर लोकेशंस, हायर लोकेशंस पे चले जाएं जहाँ पे जो है फ्लड का पानी ना पहुँच पाए। कीप मेडिसिन्स, फूड सप्लाईज एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर विद इन योर रीच, इन सब चीज़ों को अपने पास रखें। एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय रेस्क्यू टीम वर्कर्स, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है रेस्क्यू टीम वर्कर्स के द्वारा उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें।
Next comes drought. So drought is a condition or situation of severe shortage of water supply. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सूखा पड़ जाता है इस कंडीशन में. एंड बोथ सरफेस एंड अंडरग्राउंड मीन सरफेस पे भी पानी रहता है और अंडरग्राउंड भी पानी नहीं रहता है. सो सम ड्राउट्स आर ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन. कुछ ड्राउट्स जो है कुछ समय के लिए होते हैं लेकिन कुछ जो है लंबे समय तक चलते हैं. ड्राउट्स अकर ड्यू टू लैक ऑफ और इनसफिशिएंट रेनफॉल along with excessive usage of existing water resources. अभी ड्राउट की सिचुएशन कब आती है? जब जो है पानी की कमी हो, बारिश की कमी हो और उसके साथ साथ लोग जो है जो पानी वहां पे है उसको काफी ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन में भी ड्राउट आ जाता है. तो ये सिचुएशंस थे. नाउ ड्राउट कैन लीड टू, अब इसकी वजह से क्या हो सकता है? इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स को नुकसान पहुंच सकता है इससे. malnutrition and death of humans and animals. humans और animals या तो ये डाई कर सकते हैं या फिर malnutrition में पहुंच सकते हैं. and mass movement of people from one place to another. अब इसकी वजह से काफी सारे लोग माइग्रेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. now the effects of drought can be controlled by, जो effects है drought के वो कैसे जो कंट्रोल किए जाते हैं? so by making judicious usage of available water resources. जो भी water resources है उसे बहुत अच्छे से जुडिशियली हमें जो है यूज करना है. अडेप्टिंग टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडेप्ट करना है. रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, वाटर को रिसाइकल करना सीखना है. कल्टिवेटिंग क्रॉप्स विच रिक्वायर लेस वाटर, ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना है जिसमें कम पानी की जरूरत होती है. मेजर ड्राउट प्रोन रीजन्स इन इंडिया आर सदर्न एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात एंड राजस्थान. तो सबसे ज्यादा ड्राउट इन जगहों पे पड़ता है. इन 2012 द इंडियन स्टेट कर्नाटका फेस सीवियर ड्राउट. सो इंडिया का जो स्टेट है कर्नाटका, वहां पे काफी ज्यादा जो है ड्राउट की सिचुएशन आ गई थी. लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप. So drip irrigation is a modern irrigation method that saves water. ये एक modern irrigation method है जो कि पानी को बचाता है. And it is done using narrow tubes which allow very small quantity of water to drip into the roots of plants. ये क्या करता है? ये एक ऐसे ट्यूब को यूज करता है ये जो कि काफी ज्यादा नैरो होता है और ये जो है जो भी पानी है उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है रूट्स में पहुंचाता है. Let's move on to make teaching fun. So Charles Francis Richter was an American scientist. ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं who developed a scale which measures and records the intensity of earthquake. इन्होंने जो है ऐसा स्केल बनाया जो इंटेंसिटी को नाप सकता था earthquake का. Now the scale was named after him and is known as Richter scale. और इस स्केल का नाम उनके नाम पे ही पड़ा. Let's move on to word side. So earthquake is the sudden movement of a part of the earth's surface. Tide is the rise and fall of waves in the sea. Drought is a state of severe shortage of water supply, both surface and underground. And flood is a natural disaster caused by too much rain or inflow of water in an area. Now let's move on to quick review. So the actual point deep inside the earth where an earthquake originates is called the focus. And the point on the earth's surface directly above the focus is called the epicenter. Intensity of an earthquake can be determined using an instrument called seismograph. Volcanoes are of three types, namely active, dormant and extinct. Let's move on to book exercise. Put on your thinking cap. So A exercise is darken the correct option in OMR sheet. Here the first one is the actual point where an earthquake originates is called mantle core focus or tide. Correct answer is focus. Second, which of the following natural disasters is caused by shortage of water? Drought, tsunami, mantle, earthquake. Correct answer is drought. And the third one is heavy rainfall can cause earthquake, drought, flood, volcano. So here the correct answer is flood. So these are the answers. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with correct words from the box. So here the first one is the innermost layer of the earth is called core. Second, intensity of earthquake is measured using seismograph. Third one, volcanoes that erupt frequently are called active volcanoes.
And the fourth one is floods occur due to overflow of water. Let's move on to C exercise, which is take the correct statements and cross the wrong ones. First one is drought occurs when water bodies have excess water to handle. This is false. Second, effect of earthquake is felt more at the epicenter. Yes, true. Third one, tides and tsunami are one and the same thing. False. And the fourth one is when magma comes out of Earth's surface, it is called lava. Yes, true. Now let's move on to D exercise. Answer these questions here. The first one is, what is an earthquake? Earthquake is the sudden shaking of earth. And second one, what is epicenter? Epicenter is the point above focus, and this point is that point where the most of the earthquake is felt. Now third one, explain the term dormant volcano. So dormant volcano is that type of volcano which has not been erupted from a very long time but can erupt in near future. Fourth one, how do tides occur? So tides occur because of the rise and fall of sea level, and this is done by the gravitational pull of moon and sun. When earth, moon and sun, all three, they all lie in the same line, tides occur. Fifth one, how do earthquakes occur and what are the after effects of an earthquake? So earthquakes occur because of the sudden movement of the earth's plates, and the after effects of the earthquake are that after the earthquake, many of the buildings are destroyed, many people lose their life, and also many of the diseases increase. Next, sixth one, what is a volcano? Explain different types of volcanoes with one example of each. So volcanoes are the vent on the earth's crust, and active volcanoes are those volcanoes that can erupt now. Next comes dormant volcanoes. Dormant volcanoes are those volcanoes that have not been erupted from very long time, but in the near future they can erupt. And the extinct volcanoes are those volcanoes that are not going to erupt anymore. So you have to write down some of the examples of each. Now seventh one is write two after effects and two advantages of volcanic eruption. So the after effects of volcanic eruption are, it leads to destruction in property and loss of life, and the advantages of volcanic eruptions are that after the volcanic eruption, new fertile soil is created and new land masses are also created. Now, eighth one, when do floods occur and what are the after effects of flood? So, floods occur when a large amount of water enters an area, and what are the after effects of flood? So, the after effects of flood are, it damages the homes and the people are also displaced from that place. So, these are the answers. You can add some of your points also. And with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.